ऑलराइट, सो ये कुछ रिमेनिंग पोर्शन रह गया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली रिलेटेड टू द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो, एक ये जे.बी. कृपलानी सब लोग जानते हैं। सो जब इंडिया इंडिपेंडेंट प्राप्त कर लिया था 1947 में, उस वक्त INC के प्रेसिडेंट कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। एंड ड्यूरिंग इंडियाज़ इंडिपेंडेंस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वॉज क्लीमेंट एटली, एंड ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा द एम्परर ऑफ इंग्लैंड वॉज जॉर्ज सिक्स्थ ड्यूरिंग इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एंड वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। तो जॉर्ज सिक्स वहाँ के एम्परर थे, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिपेंडेंस के वक्त? ये क्लीमेंट एटली थे। सो जॉर्ज सिक्स was the Emperor of England during the India's independence and he became the first head of the Commonwealth countries. इसके अलावा पाकिस्तान was established on 14th of August, एक दिन पहले बन गया था 1947, and Indian Dominion was established on 15th of August 1947. Very minute point. पाकिस्तान का डोमिनियन एक दिन पहले बन चुका था 14th of August 1947. इंडिया का डोमिनियन 15th of August 1947 को बना था। According to which bill are we talking about? According to this bill, the country will be divided into two dominions, India and Pakistan, and will be given complete independence and sovereignty. I think it was India Freedom Bill, and it was introduced in the British Parliament on 4th of July 1947, passed on 15th of July 1947, and I'm sorry, so it was introduced on 4th of July 1947. It was introduced on 4th of July 1947. It was passed by House of Commons on 15th of July, and then it was passed by the House of Lords by 16th of July, and it was signed by the British Emperor on 18th of July. So it happened consecutively. तो ये chronology समझ सकते हो, वैसे इस पे सवाल आना नहीं चाहिए. So the bill introduction took place on 4th of July, then by the House of Commons 15th of July, House of Lords 16th July, and passed by the Emperor George VI on 18th of July. Now the Muslim League accepted Mountbatten Plan with an overwhelming majority on 10th of June 1947. Mountbatten Plan was accepted by the Congress Working Committee on 3rd of June 1947. ये तारीख इम्पॉर्टेंट है। माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया था बाय द कांग्रेस ऑन 3rd of June 1947. प्लान वही था, बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान को पार्टीशन करना था। 2nd of September 1946, जवाहरलाल नेहरू formed the interim government. The Muslim League celebrated Direct Action Day 16th August 1946, and after the acceptance of the cabinet mission by the Congress and Muslim League, elections were held in July 1946 to form the Constituent Assembly, in which the Congress secured 208 seats, including 4 Sikh members. The Muslim League won 73 seats. तो Constituent Assembly के लिए जो election हुआ था, that happened July 1946, and जिसमें कि कांग्रेस 208 सीट जीता था and Muslim League 73 seats जीता था. The Muslim League accepted the cabinet mission plan on 6th June 1946 and the Congress on 24th June 1946. हालांकि इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस इन सर्टेन ग्रुप्स. सो जस्ट लाइक पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14th of August एक दिन पहले मनाया जाता है, उसी तरह से इफ़ वी टॉक हु एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान फर्स्ट, सो उस लिहाज से फिर मुस्लिम लीग ने पहले किया था 6th June 1946 को, और कांग्रेस ने 24th of June 1946 को एक्सेप्ट किया था. Now, Azad Hind government was formed in Singapore on 21st of October 1943. Remember this thing, year as well as the date. The 3 brigades of Azad Hind Fauj were named as Subhash Brigade, Gandhi Brigade, and Nehru Brigade, and Women's Brigade were named as Lakshmi Bai Brigade. तो गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड ये याद करना है, बाकी सुभाष तो सबको पता ही है, और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड हमको याद है. So it was formed the Azad Hind government, which was a separate government. It was formed in Singapore on 21st of October 1943. 6th of November 1943, Japan handed over Andaman and Nicobar to the government of Subhash Chandra Bose, which he named as Shahid Dweep, Swaraj Dweep, respectively. On 30th of, I think it is November 1943, Netaji hoisted Tiranga at Port Blair. So very important point. 6th of November 1943 को Japan handed over Andaman and Nicobar आइलैंड्स टू द गवर्नमेंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जिसका नाम था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, जो कि बनाई गई थी 21st of October 1943 को. और 21 अक्टूबर को बनाई गई सरकार आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर, उसी सरकार को जापान ने 2 द्वीप दे दिए या सरेंडर कर दिए, जिनका नाम उन्होंने रखा शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप ऑन 6th of November 1943. Then Azad Hind Fauj officials P.K. Sehgal
गुरदयाल ढिल्लन एंड शाहनवाज हुसैन वर ट्रायल्ड एट द रेड फोर्ट. इनका नाम इंपॉर्टेंट है, सहगल, ढिल्लन एंड शाहनवाज. These were trialed at the Red Fort in Delhi on Congress on charges of treason. Later, due to public opposition, the Viceroy waived his sentence. तेज बहादुर सप्रू एक थे वकालत करने में, जवाहरलाल नेहरू थे, भूलाभाई देसाई एंड कैलाश कटजू pleaded on behalf of the Azad Hind Fauj. On behalf of the accused, that is Azad Hind Fauj, भूलाभाई देसाई presided over the group of lawyers. तो इसमें इन चारों को प्रिसाइड कौन कर रहे थे? भूलाभाई देसाई. 18th of February 1946, the Navy revolted in Mumbai on a ship named HMIS Talwar. The 19th of February 1946, the Air Force soldiers went on a strike against the British government, demanded equal treatment for both Indian and British soldiers. Under the pressure of Sardar Patel, the Navy stopped rebellion, and 24th of March 1946, cabinet mission came to Delhi. Under the leadership of three people, actually there were three members of this cabinet mission, but the leader was Patrick Lawrence. The other two members were Stafford Cripps and A.V. Alexander. Right, so this page is done. Then let's see this. So ये सब हम जानते हैं. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक हुई, सेकंड कब से कब तक हुई. Now, in the second roundtable conference, Gandhiji arrived in England as the sole representative of Congress by a ship called SS Rajputana. The second roundtable conference failed due to communal representation. और इसी के बाद फिर आके वापस after the failure of the second roundtable conference, Gandhiji again started the civil disobedience movement on 3rd of January 1932. But he could not continue it for long because he was arrested by Viceroy Wellington. Then the third roundtable conference, however, still took place between 17 November and 24 December 1932, but it was useless. The Prime Minister of England was James Ramsay MacDonald during all the three roundtable conferences, and Ambedkar participated as a representative of untouchables. In all the three roundtable conferences में Ambedkar गए थे. On 16th of August 1932, the British Prime Minister Ramsay MacDonald presented the Communal Award. Under this, along with Muslim and Sikh, अभी तक क्या मिल रहा था? मुस्लिम और सिख को तो मिल ही रहा था. The Dalit class was also considered as a minority and separate from Hindus under the MacDonald's Communal Award. In the protest against this decision, Gandhiji started a fast unto death 20th September 1932 in Yerawada Jail, Pune. And 20th September को ये fast unto death start करते हैं. And on 24th of September, 4 दिन बाद, on behalf of Gandhiji, there was an agreement between Madan Mohan Malviya and other leaders on one side and Ambedkar on the other side, which was known as the Pune Pact. So under this pact, separate electorates of Dalit class was abolished, but the number of seats reserved for Dalit sections in the provincial legislatures was increased from 71 to 148. This point is very important कि हालांकि separate electorates for Dalit class were abolished, but in the provincial legislatures, the seats of Dalit leaders was increased from 71 to 148, more than double. The number of seats reserved for Harijans in the central legislature was also increased by 18%. Alright, then the first conference of All India Kisan Sabha that happened in 1936 in Lucknow under the chairmanship of Swami Sahajanand. So this was the first All India Kisan Sabha that happened in Lucknow in 1936 and इसके जनरल सेक्रेटरी NG रंगा थे. Now मैंने बताया था कि त्रिपुरी सेशन में हालांकि सुभाष चंद्र बोस 1939 की बात है मेरे ख्याल से, ये Subhash Chandra Bose became the president through elections. He was elected, but then the Congress leaders wanted Pattabhi Sitaramaiah, तो वहाँ पे थोड़ा सा split attitude हो गया था. A candidate proposed by Mahatma Gandhi. So Pattabhi Sitaramaiah किसने propose किया था? गांधी ने propose किया था. Then on 3rd of May 1939, Subhash Chandra Bose established the Forward Bloc. इसकी तारीख पूछ सकते हैं तो 3rd of May 1939. Then 1940 में ये भी 13th of March, Udham Singh Punjab shot and killed the former Lieutenant Governor of Punjab, Dyer in London. फिर ये 17th of October 1940 पवनार in Maharashtra is a place जहाँ से individual सत्याग्रह start हुआ था, 17th October 1940. Now if we arrange these three events chronologically, we see that the Tripuri session, in fact the first one was All India Kisan Sabha 1936 Lucknow, जिसमें President Swami Sahajanand थे and the General Secretary was NG Ranga. Then इसके बाद 1939 में त्रिपुरी सेशन वाला कांड हुआ था. उसके बाद अगर देखा जाए तो 3rd of May 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था. Then 13th of March 1940 Udham Singh shot Dyer in London, and then in October 1940 individual satyagraha started. And
Sujeta Kriplani established the women's wing of Congress in the year 1940. The first, second and the third satyagrahi of the individual satyagrah were named. पहले विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे का नाम यूजुअली लोग भूल जाते हैं, ब्रह्मदत्त थे तीसरे, ठीक है. Quit India Movement resolution was passed in Congress Working Committee meeting on 14th of July 1942. अब ध्यान रहे ये अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाली डेट है ये. It was finally accepted on 7th of August. The Congress met at historical Gwalia Tank Ground in Bombay where the Quit India proposal was accepted. तो एक होता है प्रपोज और एक होता है एक्सेप्ट करना. सो जुलाई में 14th of July 1942 को प्रपोज किया था वर्धा में, ठीक है, और फिर फाइनली 7th of August गोवालिया टैंक बॉम्बे में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था क्विट इंडिया प्रपोजल ऑन 8th of August. देन इट स्टार्टेड ऑन 9th of August, एक दिन बाद, और इसी में गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई. All prominent Congress leaders were arrested in the night of 8th of August 1942 under the Operation Zero Hour, and Gandhiji was kept in the Aga Khan Palace, Pune, and other members of the Congress executive were kept in the fort of Ahmednagar. तो गांधी जी को आगा खान पैलेस पुणे में रखा गया था एंड अदर कांग्रेस लीडर्स को फोर्ट ऑफ अहमदनगर में रखा गया था. ऑल्सो प्रिजन ऑफ हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था जहाँ से वो भाग गए थे. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट्स वर ऑल्सो फॉर्म्ड. क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कुछ जगहों पे पैरेलल इंडिपेंडेंट रीजनल गवर्नमेंट्स बन गई थी, जैसे बलिया में बनी थी, तमलुक में बनी थी और सतारा में बनी थी, ठीक है. BTS, यू कैन रिमेंबर दैट, बलिया, तमलुक एंड सतारा. In June 1942, Indian Independence League was formed under the leadership of Rash Bihari Bose. तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन होता है. दिस वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1942 बाय रास बिहारी बोस. Raj Bihari Bose so he went to Japan to escape the Delhi conspiracy case. The idea of the formation of Indian National Army first struck in the mind of Captain Mohan Singh. So he was actually the brain behind Indian National Army and was established on 1st of September 1942 by Raj Bihari Bose and Mohan Singh was appointed as commander in chief. तो देखो ये जो आज़ाद हिंद फौज हम देख रहे थे, इसका प्रिकर्सर है ये इंडियन नेशनल आर्मी जो इंडिया के बाहर बनाई गई थी, दैट फॉर्म्ड in 1942 1st of September, I think, yes, 1942 1st of September. It was formed by Captain Mohan Singh and Raj Bihari Bose. In fact, और प्रिसाइसली बताएं तो इस आर्मी में पहले कमांडर इन चीफ थे कैप्टन मोहन सिंह, और बनाई किसके द्वारा गई थी, तो राज बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी. तो ये तो 1st September 1942 की बात है. देन 4th of July 1943 सुभाष चंद्र बोस वॉज अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज. फिर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी 21st of October 1943 को बनाई गई थी, और ये तो हम बता चुके हैं. 6th of November 1943 को ये जापान सरेंडर्ड द आइलैंड्स टू सुभाष चंद्र बोस. तो ये बेसिकली कुछ थोड़ा क्रोनोलॉजी देखो. 21st of October 1943 आज़ाद हिंद गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड, और 4th of July 1943 सुभाष चंद्र बोस वॉज अपॉइंटेड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज. अब इसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं. द फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, राइट. मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो ये हमको पता है, बट फिर भी देख लेते हैं. अब जैसे गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और 5th of March 1931 को गांधी इरविन पैक्ट किया गया था, दिस डेट. फिर तमिलनाडु में सी राजगोपालचरी ने साल्ट मार्च जो CDM निकाला था, उसका तमिलनाडु का वर्जन was headed by C. Rajagopalachari, and American journalist Webb Miller was related to civil disobedience movement. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. He was an American journalist, Webb Miller. Now खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन, ये अब खान अबुल गफ़ार खान के द्वारा चलाई गई थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में. And the Muslims of the North Western Frontier Province organized a civil disobedience movement under the leadership of Khan Abul Ghaffar Khan, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं. और ये डेट्स इंपॉर्टेंट है. 12th March से चले थे, 6th April को पहुंच गए थे. द डिस्टेंस वाज अप्रॉक्सीमेटली 390 किलोमीटर्स, जिसको पैदल कवर किया गया था, और इसी को हम लोग CDM का मतलब बोलते हैं, इसी से स्टार्ट हुआ था. नाउ ये मोहम्मद इकबाल एक थे पोएट. इन द ईयर 1930 अबाउट इन्होंने बोला था कि देयर इज़ अ नीड फॉर अ नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मुस्लिम स्टेट विद इन द सॉवरेन इंडियन कॉन्फेडरेशन. ये बात किसने बोली थी? इकबाल ने बोली थी. इसके बाद ये 31st of December 1929 वाला जो लाहौर का सेशन हुआ था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, 12 बजे दोपहर में तिरंगा फैलाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, और यहीं पे पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी. नाउ ये 8th of April 1929 की क्या बात है? हाँ, ये 8th of April इसलिए इम्पोर्टेंट है और
ईयर 1929 8 अप्रैल इनका सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिए थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ठीक है, इन प्रोटेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है। और ये बेकार के बम थे, असली बम नहीं थे। तो और इनफैक्ट जो दिसंबर 1928 में क्या हुआ था वो अगेन भगत सिंह यहाँ भी इन्वॉल्व थे फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स को असैसिनेट करने के लिए। दैट हैपेंड इन दिसंबर 1928 whereas the Central Legislative Assembly bombing case happened in 8th of April on 8th of April 1929 whereas Saunders assassination took place in December 1928, ठीक है। अब ये देख लो कि इन दोनों को ही माना जाता है HSRA के फाउंडर्स, ठीक है, एट दिल्ली 1928 में। हालांकि HRA पहले बन गई थी 1924 में बाय भगत सिंह एंड HSRA 4 साल बाद 1928 में बनी थी। Now Lala Lajpat Rai was injured and later died in the police lathi charge during the protest of the Simon Commission. तो ये 30th अक्टूबर 1928 की बात है, ये लाहौर में हुआ था घटना। आई थिंक इट इज़ 1927 होगा यहाँ पे, ये 28 गलत लिखा है बिकॉज साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 3rd of February 1928. इट वॉज एन ऑल वाइट कमीशन, राइट। देन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लहरी एंड रोशन सिंह, दीज वर इन्वॉल्व in one of the act, therefore hanged, whereas Sachindranath Sanyal was sentenced life imprisonment, ठीक है। तो ये किस कांड की बात हो रही है? ये हम लोग फेमस काकोरी ट्रेन एक्शन डे की बात हो रही है जो कि 9 अगस्त 1925 को अंजाम किया गया था। 9 अगस्त 1925 को क्या अंजाम किया गया था? 4 लोगों के द्वारा, इनफैक्ट 5 लोगों के द्वारा, जिसमें से 4 को लटका दिया गया और 1 भाग गया। तो इस पूरे घटनाक्रम को इस रूप से याद करो कि एक ऐसा घटना हुआ जिसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे, 4 लोग लटका दिए गए, 1 भाग गया। वो घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को और वो राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और बिस्मिल, ये 4 लोग को लटका दिया गया था। वेरस जो भाग गए थे वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल। तो हम किस घटना की बात कर रहे हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन डे 9 अगस्त 1925। अब अगर कुछ हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अरेंज करने की कोशिश करें तो अभी हमने काकोरी एक्शन देखा था 9 अगस्त 1925, फिर हमने देखा था दिसंबर 1928 में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स असैसिनेशन, जिसमें कि भगत सिंह अगेन इन्वॉल्व थे, दिसंबर 1928। और फिर हमने देखा था कि 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था। तो इस क्रोनोलॉजी को समझो। नाउ ये हम बता रहे थे कि HRA तो पहले बन चुका था 1924 कानपुर में, जबकि HSRA 1928 में बना था दिल्ली में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में। तो HSRA तो भगत सिंह और आज़ाद के द्वारा बनाया गया था, लेकिन HRA वॉज बिल्ट बाय सचिंद्रनाथ सान्याल। नाउ 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा गोरखपुर इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड बाय गांधी जी ऑन 12 फरवरी 1922 ऑन बीइंग हर्ट, ठीक है। अब गया में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू फाउंडेड द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इन मार्च 1923। ये एक तरह से वही है, मतलब एक और सेकंड फैक्शन जब पड़ रहा था। सूरत स्प्लिट तो 1907 में हुआ था, बट एक और फैक्शन बन रहा था जब NCM विड्रॉ कर लिया गया था और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हम तो इलेक्शंस लड़ेंगे और असेंबलीज़ में जाके ऑब्सक्यूरेंटिस्ट टैक्टिक्स अपना के ब्रिटिश गवर्नमेंट को घुटनों पर ले आएंगे। तो उनमें वो काम करने के लिए एक पार्टी तो बनानी पड़ेगी ना पहले, और उस पार्टी के बल पे इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे। तो वो लोग थे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और उनकी पार्टी का नाम था कांग्रेस या सिंपली खिलाफत स्वराज पार्टी, और वो बनाई गई थी मार्च 1923 में। MN रॉय ताशकंद 1920 इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाए थे ये। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, बट इसी दिन बाल गंगाधर तिलक को भी मार दिया गया था लाठी चार्ज में। फिर ठीक है, ये सब हमको पता है, ये भी ठीक है। फिर अ प्रोब कमिटी इन 1919 वॉज फॉर्म्ड under the chairmanship of Madan Mohan Malviya to investigate the incident on behalf of the Congress. तो ये internally Congress का step लिया गया था। This had nothing to do with the official British government. ये अपना Congress खुद से कर रहा था। तो a committee was formed under the chairmanship of Lord Hunter to investigate on the causes of the Jallianwala Bagh massacre, और उसी का Congress अपने मतलब हिसाब से कर रहा था। That was called probe committee, जिसके हेड मदन मोहन मालवीय थे। नाउ अब ये शंकरन नायर कोई व्यक्ति थे जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिज़ाइन किए थे किस घटना के प्रोटेस्ट में? जलियांवाला बाग, ठीक है। देन एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रूसम मैसेकर, गांधी जी, जमनालाल बजाज एंड रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न देयर टाइटल्स टू द कॉलोनियल रूलर्स। तो इसमें गांधी जी, जमनालाल बजाज और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तीनों ने लौटा दिया था।
जनरल डायर ओपन फायर ऑन पब्लिक मीटिंग एट जलियांवाला बाग। इसमें सारा का सारा मसला था द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, और इनके अरेस्ट के प्रोटेस्ट में लोग बैठे थे 13 अप्रैल 1919 किसी पार्क में जहाँ पे ये मैसेकर हुआ था। और रोलेट एक्ट तो अलग चीज़ थी, उसके लिए गांधी जी ने एक प्री डिसाइडेड डेट तय की थी 6 अप्रैल 1919 को नेशन वाइड स्ट्रगल करने के लिए। हालांकि ये हरकत करने के लिए मना किया था कुछ लोगों ने उनको, बट ही स्टिल वेंट अहेड एंड डिड इट। सो द रोलेट एक्ट वाज पास्ड ऑन 18 मार्च 1919 एंड फिर ये सब पता है हमको। ठीक है, देखो एक नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट किया गया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में 1918 में। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा 3 सत्याग्रह हैं जो गांधी जी अटेंड किए थे। उसमें जो खेड़ा वाला था उसमें बेसिकली नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट किया था गांधी जी ने। इसमें गांधी जी की मदद किए थे वल्लभ भाई पटेल एंड इंदुलाल याग्निक। दे हेल्प्ड गांधी बाय अरेंजिंग फॉर हिम टू विजिट विलेजेस इन खेड़ा एंड एनकरेजिंग द फार्मर्स टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो याग्निक और वल्लभ भाई पटेल का नाम इंपॉर्टेंट है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट 1918 खेड़ा सत्याग्रह से। नाउ मेनली at the behest of Rajkumar Shukla, Mahatma Gandhi went to the Champaran to understand the problems of farmers. Now Gandhi's first सत्याग्रह was organized in Africa in 1906. वैसे देखा जाए तो पहला सत्याग्रह तो ये अफ्रीका में किए थे 1906 में, लेकिन जब इंडिया में आ गए थे तो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1917 चंपारण। तो ये इंपॉर्टेंट है 1906 गांधी's फर्स्ट सत्याग्रह outside India. Gandhi went to Champaran on the insistence of Rajkumar Shukla. Gandhi established Sabarmati Ashram in Ahmedabad in 1917. Annie Besant 1916 Home Rule League in Madras. बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड होम रूल लीग इन अप्रैल। तो इन दोनों में बाल गंगाधर तिलक वाला होम रूल लीग पहले बना था और दैट इज़ इन अप्रैल 1916, और एनी बेसेंट वर्जन वाज इन सितंबर 1916 बाद में। फिर लखनऊ सेशन 1916 देयर वाज अ यूनिटी बिटवीन टू फैक्शंस ऑफ कांग्रेस मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है। महेंद्र प्रताप along with his associate Barkatullah formed India's first provisional government in Kabul in the year 1915. This was the India's first provisional government outside India in Kabul. इसमें किसके द्वारा बनाई गई थी? महेंद्र प्रताप with help from बरकतुल्ला। अब ये पूरा कोमागाटा गारू शिप इंसिडेंट हमको पता है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 376 पैसेंजर्स थे। ठीक है, अब 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ कैसर हिंद ऑन महात्मा गांधी 1915 में। और बसंत बिस्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी एंड मास्टर अमीर चंद दे वर हैंग्ड इन द केस ऑफ थ्रोइंग बॉम्ब्स ऑन हार्डिंज इन 1911, जिसमें कि रास बिहारी तो भाग गए थे जापान में। तो ठीक उसी तरह से जैसे 19 काकोरी इंसिडेंट हुआ था तो एक बच गया और 4 लोग को लटका दिया गया था, ठीक उसी तरह से 4 लोगों को यहाँ भी लटकाया गया था। इसमें एक थे बसंत, एक बाल मुकुंद, एक बिहारी और एक अमीर चंद, ये चारों को लटका दिया गया था, जबकि रास बिहारी बोस बच गए थे और भाग गए थे। ठीक है, तो अब इसके बाद ये लॉर्ड हार्डिंज वॉज अटैक्ड इन दिल्ली ऑन 23 दिसंबर 1912 की घटना है ये बाय रास बिहारी बोस इंक्लूडिंग हिज कॉमरेड्स दीज 4 पीपल। दिस इज कॉल्ड एज द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। द दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी वॉज सेट अप इन 1912 टू डेवलप एंड डिज़ाइन मेजर बिल्डिंग्स लाइक वाइसरॉयज हाउस। तो इसमें एडविन लाइटेंस बिकेम द मेंबर ऑफ दिस कमेटी इन मार्च 1912। सो it was announced to shift the capital from Calcutta to New Delhi during the time of Viceroy Lord Hardinge. And in this, Viceroy Hardinge organized a grand court in Delhi in 1911 to welcome Emperor George V of the England and Queen Mary. तो इसमें George V and Queen Mary कब आए थे? 1911 वाले दरबार में आए थे, हार्डिंज ने बुलाया था। George V, Queen Mary, 1911. In this court, the partition of Bengal was annulled. Ajit Singh established an organization called Anjumane मोहिज़बान वतन इन लाहौर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। लाहौर में एक संस्था बनाई गई थी अंजुमाने मोहिज़बान वतन, ये लाहौर में बनाई गई थी अजीत सिंह के द्वारा। मदन लाल डिगरा शॉट कर्जन वाइली, ये 1 जुलाई 1909 की घटना है। एंड भीखाजी कामा होस्टेड इंडियन फ्लैग इन स्टटगार्ट जर्मनी इन 1907। ठीक है, बाकी फिर खुदीराम बोस वॉज द यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी टू बी हैंग्ड, ये हम देख चुके हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल।